حکیم لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 300 سال تک مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس لمبے تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ جو دوا انسان کے لیے سب سے بہترین ہے وہ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا کریں؟ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دے۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے اگر متلی یا الٹی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا رس اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ اس رس کو 1 کپ صبح، دوپہر، شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار ایسا کریں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے ایک نہایت آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ جو موسم ہو اس کا پھل کھاؤ، اور جب موسم جانے لگے تو اس پھل کو کھانا چھوڑ دو۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگو۔ اپنی کچھ برائیاں بھی بتا کر دیکھو کہ پھر کون آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ انار کھانے سے بدن میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلگم ختم ہو جائے گی، اور اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 کی 100 بیماریاں نہیں آئیں گی۔ نیم کے پتوں کو پاو کے تلووں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا، اور اس سے آپ بہت سی لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھائیں۔ اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچ کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں ان کو پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ پی لیں۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خوف و دہشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو تو ایسے لوگ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم سے کم 1 سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر طرح کی خرابی کا ایک نایاب علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل پیدل چلنے کے برابر کی طاقت دیتی ہے۔ گاجر ہمارے امیونٹی سسٹم کو طاقتور بناتی ہے۔ گاجر کے استعمال سے کھانے کی کمی بھی پوری ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں کا ہمارے لیے نہ جاننا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی میں کافی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
आग से अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर कच्चा आलू रगड़ ले, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए रात को सोते वक्त पाव के तलवों पर खालिस सरसों का तेल लगाएं। इससे दिमाग को बहुत हद तक सुकून मिलेगा। अगर रोजाना सिर्फ 4 मिनट पाव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश की जाए तो दिमागी सुकून के अलावा आंखों को भी बहुत फायदा मिलता है और नींद भी खुलकर आती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और गमगीन होते हैं। जब दोपहर का खाना खाओ तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर लाजमी कुछ मिनट पैदल चलो, चाहे तुम्हें कांटों पर ही क्यों ना चलना पड़े। जब तक पेट की पहली गिजा हजम ना कर लो, दूसरा खाना हरगिज ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाए। जिंदा लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि मरे हुए लोग अपनी तारीफें नहीं सुन सकते। नाजरीन, हमेशा याद रखें, अगर जिस्म में खून की कमी होगी तो जिस्म में ये निशानियां आएंगी: सांस लेने में मुश्किल होना, सर चकराना, थकावट होना, जिल्द की रंगत का पीला पड़ जाना, सीने में दर्द रहना और हर वक्त हाथ पांव ठंडे रहना। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी सिर्फ 1 महीने में पूरी हो जाती है। अगर मैदे में गैस बहुत ज्यादा बनती हो या पेट में मरोड़े उठती हो तो पुदीने का कहवा बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से यह मसला हल हो जाता है। पुदीने का रस हैजे को खत्म करता है। इसके अलावा नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजे में काफी फायदा होता है। जायफल का जोशानदा पीने से हैजे में पड़ने वाली स्याही खत्म हो जाती है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। नाजरीन, जिसको खून की कमी की शिकायत हो जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा गाजर के जूस का इस्तेमाल करे। अगर बाल गिरते हो और कमजोर हो तो नारियल का तेल और जैतून का तेल मिक्स करके हफ्ते में सिर्फ 1 बार लगाकर 3 घंटे के बाद सर धो लें। कुछ ऐसे काम जो सेहत को नुकसान देते हैं उनसे बचें। खाना खाने के बाद सोने से बचें। खाना खाने के बाद फौरन नहाने से बचें। खाना खाने के फौरन बाद फल खाने से बचें। खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से बचें। नाजरीन, देसी मुर्गी का सूप पीने से सारा दिन जितना मर्जी काम कर लो, थकावट नहीं होगी। गलतियां कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। अपने जहनी सुकून के लिए 3 चीजें हमेशा कम रखें: अपने अल्फाज, दूसरों से उम्मीदें और लोगों से मेल मिलाप। जिस घर में सब लोग रोजाना सुबह वर्जिश करते हैं उन लोगों की उम्र लंबी होती है। घी में कुछ नमक शामिल करके रोजाना मालिश किया करें, इससे बदन की खुश्की दूर हो जाती है। बकरी का दूध इंसान को ताकतवर बना देता है और पेट की चर्बी को पिघलाता है। दूध पिलाने वाली औरतों को ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ज्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से लोगों को हार्ट अटैक का खतरा होता है। पान के पत्ते कच्चे चबाने से दिमाग तेज हो जाता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। जिगर के मरीज लोग काले चने इस्तेमाल करें। जिस्मानी कमजोरी का शिकार लोग भी काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बहुत मुफीद है। जिगर की खराबी पैदा हो जाए तो रात को एक मूली बाहर किसी खुली जगह पर रख दें, जहां उस पर शबनम पड़ती रहे, फिर सुबह सवेरे उठकर खा लें। मैदे की गर्मी जानना छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करो। ज्यादा देर तक जीना चाहते हो तो हमेशा सादा खुराक खाओ। भूख से कम खाने से बीमारियों से छुटकारा पाओगे
और जिस्म में ताकत बरकरार रहेगी। छिलके समेत आम खाने से बांझपन की बीमारी दूर होती है। टीका लगवाने के बाद अगर मुतासिर जगह सूज जाए तो बर्फ की मालिश करें। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी जैसी बीमारी लग सकती है। नाशपाती विटामिन सी से भरपूर होती है। ये इंसानी जिस्म की कुव्वते मुदाफात यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, मैदे को ठीक रखती है और सांस के मरीजों को बहुत फायदा देती है। अगर भूख अच्छी तरह ना लगती हो तो अदरक को तराश कर उसके ऊपर नमक छिड़क कर रोजाना थोड़ी सी खा लिया करें। खाना खाने से पहले अंजीर खा लेने से जिंदगी भर जिस्म में कमजोरी पैदा नहीं होती। बैर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। ये एक कुदरती फल है जिसको बहुत कम लोग खाते हैं। रोजाना निहार मुंह 3 अंजीर आधे गिलास पानी के साथ 40 दिन तक इस्तेमाल करें। जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाएगी। अदरक और नींबू का रस और जैतून का तेल एक चम्मच आधा गिलास पानी में मिलाकर पी ले। 15 दिन में गुर्दे की पथरी पिघल कर निकलने लग जाएगी। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर ज्यादा खाएं। ये जिगर को बहुत मजबूत बनाता है और जिस्म में नया खून पैदा करता है। रोज नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल करने से मोटापा कम होने लगता है। अगर ये अमल निहार मुंह करोगे तो बहुत फायदा होगा। पट्ठों के दर्द और खिंचाव के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासिर जगह पर मालिश कर ले, आराम आ जाएगा। जो शख्स अपनी आंखें नीची रखता है वो अपने दिल को राहतो आराम में रखता है। अगर आपको खारिश की बीमारी या एलर्जी ज्यादा तंग कर रही है तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर इस्तेमाल करें। दोपहर को रोटी सालन के साथ बारीक कच्चा प्याज खाने से 4-5 दिन के अंदर पेट के कीड़े पूरी तरह मर जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और मैदे की बीमारियां भी रफा दफा हो जाती है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वो चकुंदर और खीरा खा लिया करे, हमेशा जवान नजर आएगी। जल्द दुबला पतला होना चाहते हो तो सुबह पैदल चलकर नींबू पानी पिया करो। दाल रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है और इंसान का जिस्म ठीक रहता है। दाल प्रोटीन से भरपूर होती है। घमंड इंसान के पैर को फिसलाता और मुसीबत के गड्ढे में डालता है। सबसे पहले घमंड शैतान ने किया और सबसे पहले नुकसान भी उसे पहुंचा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।